posterior pituitary today I will cover up. Already we have covered about the anterior pituitary hormones. कौन कौन से हार्मोन कवर किया हमने एंटीरियर पिट्यूटरी में? Growth hormone and prolactin we have covered. The rest of the hormones you will learn there in the different glands. Okay, like TSH, thyroid hormones and FSH, LH respective sections में पढ़ोगे. So today I will take up the posterior pituitary hormones. You all know the two very important hormones which are released, that is the ADH and the oxytocin. So we will cover these two hormones. You all know this is the posterior pituitary is also called neurohypophysis. Okay, and what does it contains of? इसमें क्या रहता है? It is neural content रहता है ना? Neural origin है इसका. From where does it originate? From that is the extension of the neural network from the diencephalon, है ना? हाइपोथैलेमिक जो एरिया है वहां से वो क्या होता है? वो डाउनवर्ड एक्सटेंशन है. ओके, न्यूरल कनेक्शंस. सो इट कंटेन्स ऑफ द नर्व फाइबर्स. सेल बॉडी होगा ऊपर हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस में, उसका नर्व फाइबर होगा, एक्सॉन होगा, that is unmyelinated nerve fibers. Okay, and these are located mainly in the two neurons, that is the supraoptic and paraventricular group of nuclei. Okay, and there are, वो नीचे जाता है, वो जाकर एक्सॉन बनाता है. Okay, and it contains different secretory granules in it. Okay, एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, उसमें different granules होते हैं. Okay, different granules होते हैं. Okay, like a packets, you know, and they are having the different supporting cells as well, that is the pituitary. Pituitary are special supporting cells, okay, in between the axons. Okay, and there are glial cells like the astrocytes and oligodendrocytes. These are all composed of neurohypophysis contents. And posterior pituitary is having the two important hormones. These are also called neurohormones, क्योंकि neural origin है इसका. That is the ADH, that is also called vasopressin और arginine vasopressin भी कहते हैं, AVP भी कहते हैं, arginine vasopressin. Okay, और ADH antidiuretic hormone and the oxytocin hormone. Okay, and where does it synthesized? ये synthesize नहीं होता posterior pituitary में, है ना? synthesize नहीं होता, isn't it? Whereas anterior pituitary hormones वो anterior pituitary में synthesize हो रहे हैं. आ जाइए अंदर, है ना? anterior pituitary hormones वो anterior pituitary itself में वहां पे synthesize हो रहे हैं, but obviously it is under the control of hypothalamic hormones. Okay, but posterior pituitary hormones, they are not synthesized in the posterior pituitary itself. Why is it so? Why is it so? Yes, can you think of? Because they are having the cell bodies. वहां पर उसके जो cell bodies होते हैं, जो synthetic machinery है, they are there in the hypothalamic neurons, nucleus, supraoptic paraventricular nucleus. वहां पे axon cell body का parts होते हैं. Cell body में nucleus है, तो वहां पे synthesize होगा वो. Synthetic machinery is there in the hypothalamic nucleus. Okay, so they are synthesized in the cell bodies of these जो supraoptic और paraventricular group of nuclei होते हैं, they are called magnocellular neurons होते हैं. Okay, they are magnocellular, size थोड़ा बड़ा होता है. Magnocellular neurons of both supraoptic and paraventricular group of nuclei. Is it okay? You can see here, these are the cell bodies here. Okay, in the magnocellular neurons कहते हैं. अब इसमें दो न्यूक्लियस है, सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. यहां से सिंथेसाइज होकर ये थ्रू द एक्सोनल फ्लो, है ना? एक्सोनल फ्लो से होगा. ओके, एंड एक्सोनल फ्लो होकर यहां पे आएगा. यहां पे सिक्रीट होने के बाद दे विल इंटर इनटू द कैपिलरीज नेटवर्क, और वो सर्कुलेशन में जाएगा फिर टू द टारगेट एरियाज. ओके, and these two hormones, that is the ADH and the oxytocin, they are having a
9 amino acids. They are called oligopeptides. Polypeptides लिखा है, but it is actually oligopeptides, less than 10 amino acids. आपने क्लासिफिकेशन में if you remember, पेप्टाइड्स में ओलिगोपेप्टाइड्स थे, कुछ पॉलीपेप्टाइड्स थे, isn't it? तो it comes under oligopeptides, 9 amino acids. Okay, दोनों में होते हैं 9 amino acids, but position 3rd and 8 amino acid, they differ in these two hormones. Okay, and obviously these hormones are released as prohormones. So both are synthesized as prohormones. आप दोनों बात कर रहे हो, आप दोनों खड़ा हो जाओगे फिर सर. You want to stand up here? Both are synthesized as prohormones. पहले डायरेक्टली वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता, उससे पहले क्या होता है, प्री एक्टिव फॉर्म, प्रो एक्टिव फॉर्म है. ओके, सो दैट इज prohormones synthesized. Both are synthesized as prohormones. Like prohormones of the vasopressin are called pre-pro-vasopressin, pre-pro-presophycin, pre-pro-presophycin and pre-pro-oxyphycin. Okay, pro form है उसके, previous form है. So, and obviously these axons of the synthesizing neurons, वो कहाँ जाके टर्मिनल स्वेलिंग्स में होंगे वो, एंड दीज आर कॉल्ड हेरिंग्स बॉडीज. हेरिंग्स बॉडीज क्या होते हैं, वो जो अंदर में जो टर्मिनल, जो आपका एक्सॉन हुआ, एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल वो पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं. ओके, पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड हेरिंग्स बॉडीज. सिक्रेटरी ग्रैन्यूल, दीज आर द सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स एक्चुअली कंटेनिंग दीज प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स. प्रो हार्मोन्स जो है ना, प्रो हार्मोन्स, वो इसी में होते हैं, पैकेट्स में, और निकलने के बाद एक्टिव होते हैं. ओके, एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड डाउन द एक्सॉन्स. ऊपर में सिंथेसाइज हुआ सेल बॉडीज में, वो फिर एक्सोनल फ्लो से नीचे आते हैं. ओके, एंड जो पैकेट्स में सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स है उसको हम हेरिंग्स बॉडीज कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली हाउ इट विल बी रिलीज, रिलीज कैसे होंगे, जब ऑब्वियसली कोई इंपल्स उसको एक्टिवेट करेगा, डीपोलराइज करेगा उस न्यूरॉन्स को. ऑब्वियसली जब बॉडी में रिक्वायरमेंट होगा तो इट विल बी एक्टिवेटेड. ओके, एंड ऑब्वियसली इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द न्यूरॉन्स, एंड वो सिक्रेटरी वेसिकल्स तक आएंगे. ओके, एंड ऑब्वियसली ये कैपिलरीज में इंटर होंगे, देन ये टारगेट ऑर्गन में जाएंगे. सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट द एडीएच. ADH, that is arginine vasopressin. We have seen that it is where it is synthesized. These two are synthesized in the magnocellular group of neurons. Magnocellular neurons में होते हैं, especially in the ADH में होता है वो supraoptic nuclei में it is predominantly synthesized, but partly in the also in the paraventricular. So predominant area of synthesis of ADH is the supraoptic nuclei, है ना, but partly also in the paraventricular area. And the gene which is associated with ADH synthesis is chromosome number 20. Okay, so you can see here prohormones है ये, pre-pro-presophycin. Okay, it is 19 amino acids. It is also having arginine vasopressin, pre-pro-presophycin किसको करे, इसमें क्या क्या है, arginine vasopressin molecule which is the active molecule, उसके साथ में क्या है, that is the carrier protein, okay, that is neurophysin 2. neurophysin 2 इसके साथ में होता है, और प्लस ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल. ये तीन अटैचमेंट होकर प्रो हार्मोन्स बनते हैं. ओके, एंड ऑब्वियसली बाय स्पेसिफिक एंजाइमेटिक कटर्स, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स. ओके, इसको कट करते हैं, ये डिफरेंट अलग अलग हो जाते हैं, और अलग होकर आर्जिनिन वैसोप्रेसिन अलग हो गया, और ये दोनों अलग हो जाते हैं. ओके, सो न्यूरोफाइसिन सर्व्स एज द कैरियर प्रोटीन. तो न्यूरोफाइसिन 2 कैरियर प्रोटीन है आर्जिनिन वैसोप्रेसिन के लिए, न्यूरोफाइसिन 2, और न्यूरोफाइसिन 1 ऑक्सीटोसिन के लिए. ओके, कैरियर प्रोटीन ऑफ आर्जिनिन वैसोप्रेसिन इज न्यूरोफाइसिन 2, और 1 ऑक्सीटोसिन के लिए कैरियर प्रोटीन है. ओके,
Coming on to the functions of ADH, very important to understand. What is the function? You all know. The name itself suggests antidiuretic. It decreases the urine output. Urine output को limit करता है, isn't it? So how does it limit the urine output? Fluid balance में help कर रहा है. Okay, fluid balance, electrolyte balance also. So how does it regulating the fluid balance, water balance you can say. How does it regulating? Can you tell? You have covered with the renal physiology. Yes. Which cells of the collecting ducts on the and distal convoluted tubules में भी करते हैं कुछ. आ जाओ. Yes, which cells in the collecting duct? What are the types of cells you know? दो तरह के cells होते हैं ना. No murmuring. Yes. Can you tell? What are the two types of cells in collecting duct? Very important. Very yes. Yeah. Very basic questions I am asking. There are two types of cells. One is he is telling intercalated cells, I cells and P cells, principal cells and intercalated cells. दोनों का role क्या है? What is it principally involved with? Principal cells is mainly involved with water balance, okay, water reabsorption in the collecting ducts through the aquaporins. And what about intercalated cells? Yes, acid and base balance, है ना. यूरिन जो एसिडिक होता है H+ आयन सिक्रेट कराता है. So very important questions. If you already you have covered about kidneys. So in kidneys it is having regulation for water balance. So you all know कि ADH क्या होता है? वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है ना, वाटर आउटपुट को लिमिट करता है, isn't it? By acting on the principal cells of the collecting ducts as well as late distal collecting duct. Okay, and it is also called vasopressor action होता है इसका, है ना, vasopressor action. That's why it is called vasopressin, arginine vasopressin. Okay, vasoconstriction हो तो what will happen? It will increase the blood pressure. अगर blood volume कम हो रहा है, आपका fluid restriction है ना, fluid कम हो गया आपके बॉडी में, तो blood pressure कम होगा तो ये increase करेगा, so that it will reabsorb the water and it vasoconstrictor effect होगा. So it will increase the normalize the blood pressure, but through different receptors. Receptor is not the same. Okay, and it is also having another important function on anterior pituitary. Anterior pituitary और posterior pituitary दोनों क्या होते हैं? ब्लड वेजल्स जो है ना, दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक चैनल उससे मिलता है. ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन तो इन्फ्लुएंस भी करता है टू सम एक्सटेंट. स्पेशली इट एक्ट्स ऑन द कॉर्टिकोट्रॉफ्स. एडीएच क्या होता है? कॉर्टिकोट्रॉफ्स, ब्लड से जाता है उधर और कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स पे एक्ट करता है एंड इट इंक्रीजेज द एसीटीएच सिक्रीशन. ओके, and recently it is also seen that it is having some effect on brain. Okay, by it increases the memory, development of brain and also on circadian rhythm. कुछ रोल इसको देखा गया. Okay, and on liver पे भी एक्ट करता है. Okay, it causes glycogenolysis, ग्लूकोज आउटपुट को इंक्रीज कर रहा है इन द लीवर. सो एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स स्पर्म इजैकुलेशन बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स. यहाँ पे है ना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन है. ओके, सो ऑन किडनीज पे जो एक्ट कर रहे हैं वो किस रिसेप्टर से एक्ट करते हैं? दे आर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, V1 एंड V2 रिसेप्टर्स, है ना. एडीएच के दो टाइप V1 और V2 रिसेप्टर्स होते हैं. तो V2 रिसेप्टर्स जो आपको रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, जो प्रिडोमिनेंट एक्शन है. इनफैक्ट अगर स्लाइट चेंज आपका बॉडी में आपका ऑस्मोलैरिटी का चेंज होता है, इट इंक्रीजेस अ लॉट. ओके, इसका सिक्रीशन बढ़ता है. सो ऑन V2 रिसेप्टर के थ्रू क्या हो रहा है? वाटर बैलेंस कर रहा है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, जो कलेक्टिंग डक्ट्स पे जो एक्ट कर रहे हैं थ्रू द एक्वापोरिन. ओके, स्पेशली एक्वापोरिन 2, है ना. 1, 2, 3 इज
देयर इन द किडनी एरिया, ट्यूब्यूल्स एरिया. सो 2 पे एक्ट करता है और ये क्या होता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है. दैट इज थ्रू द V2 रिसेप्टर्स. एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन जो है इट इज बाय V1. V1 में भी 2 टाइप के रिसेप्टर है, V1A एंड V1B. ओके, V1A एंड V1B. V1A के थ्रू कराते हैं ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन जो हो रहा है. ओके, एंड ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी इट इज थ्रू द V1B रिसेप्टर्स. ओके, इट इज थ्रू द V1B रिसेप्टर्स. इसमें V1B रिसेप्टर्स. यहाँ पे भी ब्रेन पे भी जो एक्ट कर रहा है V1A के थ्रू कर रहा है, लीवर में भी V1A के थ्रू करता है. ओके, और यहाँ पे भी V1A के थ्रू करता है. ठीक है, रिसेप्टर इज डिफरेंट. स्पेशली यू कैन थिंक V1B को V3 रिसेप्टर भी समवेयर इट इज रिटन. ओके, V1 V2 तो हो गया, V3 भी बोलते हो. कमिंग ऑन टू द हाउ इट इज रेगुलेटेड. ATH सिक्रीशन आपका कंट्रोल कैसे होता है लेवल बॉडी में, ये रेगुलेट कैसे होता है, हाउ इट इज गेटिंग रेगुलेटेड. इट इज प्राइमरली बाय 2 इंपॉर्टेंट स्टिमुलस. 2 स्टिमुलस बॉडी में होगा तो क्या होगा, इट विल स्टिमुलेट इट्स प्रोडक्शन. इफ देयर इज चेंज इन प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी अगर कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है. ओके, ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो गया या डाइल्यूटेड हो गया, इस पे डिपेंड कर रहा है. एंड ऑल्सो चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. ऑब्वियसली ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी यूजुअली इंक्रीज होता है. ओके, सो दीज आर द 2 स्टिमुलस, 2 वेरी इंपॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर द रेगुलेशन ऑफ ADH. बट हाउ इट इज एक्टिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी ऑल नो कितना होता है, 285 to 290 अप टू 300 तक भी नॉर्मल मानते. ओके, 285 मिलीऑस्मोल पर kg. If there is slight change in the plasma osmolality, ADH concentration will increase. Okay, समझ में आ रहा है. और लेकिन वैसोप्रेशर जो एक्शन होता है, जो आपको एक और एक्शन बताया ना आपको, वैसोप्रेशर एक्शन है. बट वैसोप्रेशर एक्शन कब होता है, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में होता है. ADH लेवल जब ज्यादा होता है तब वो कराता है. Okay, so how it is plasma osmolality and ADH secretion, you can see with this graph. If there is increase in the plasma osmolality, what will happen to the ADH? Concentrated हो रहा है तो क्या हो रहा है, absorption बढ़ाएगा, isn't it? Normalize करने के लिए तो linear correlation you can see, है ना. अगर plasma osmolality कम हो रहा है तो ADH का लेवल भी कम हो जाएगी, secretion भी कम हो. Likewise आपका ब्लड वॉल्यूम यू कैन सी यहाँ पे डिक्रीज दिखा रहा है. मीन आर्टीरियल प्रेशर, प्रेशर अगर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्लाज्मा ADH लेवल, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है ना, कम हुआ तो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने लगेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कराने, तो ADH विल इंक्रीज. यू कैन सी परसेंटेज डिक्रीज इन मीन आर्टीरियल प्रेशर. ब्लड प्रेशर कम हो गया, सपोज 120 से 100 हो गया, तो क्या होगा, बॉडी रीअब्सॉर्ब करना चाहेगा एंड इट विल ट्राई टू नॉर्मलाइज द ब्लड प्रेशर. तो उसके लिए ADH कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा. ओके, सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज रेगुलेटेड. यू मस्ट अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज द स्टिमुलस हियर? स्टिमुलस में भी द चेंज इन द ऑस्मोलैरिटी और चेंज इन ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर, यही हो सकता है. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द चेंज इन ऑस्मोलैरिटी. ऑस्मोलैरिटी अगर चेंज हो गया, सपोज आपने पानी कम पिया काफी दिनों से, तो व्हाट विल हैपन, द ऑस्मोलैरिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज. इफ यू आर नॉट टेकन वाटर, आपने इंटेक कम लिया है, व्हाट विल हैपन, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, इट विल इंक्रीज. सो दिस विल बी द स्टिमुलस, स्लाइट चेंज इन द ऑस्मोलैरिटी. ओके, इट विल एक्टिवेट दिस पाथवे. ये क्या होगा, यहां से स्टिमुलस, इट विल एक्टिवेट, ब्लड जाएगा वहां पे और ये ब्रेन के एरिया में जाएगा. ओके, स्पेशली इट विल एक्टिवेट द ऑस्मो रिसेप्टर्स. ऑस्मो रिसेप्टर, दीज आर द रिसेप्टर सेल्स फॉर द ऑस्मोलैरिटी. ओके, जैसे चेंज होगा ऑस्मोलैरिटी ब्लड में, क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स विल बी एक्टिवेटेड. ऑस्मो रिसेप्टर्स होते क्या है, दीज आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स. इसमें क्या होता है, एक
सब फॉर्निशियल ऑर्गन होते हैं, ओके, सब फॉर्निशियल ऑर्गन इन द एंटेरोवेंट्रल एरिया ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, स्पेशली एंटीरियर साइड ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के ऊपर में क्या थर्ड वेंट्रिकल है ना, तो उसके क्या होता है एंटीरियर साइड ऑफ द हाइपोथैलेमस, यू कैन से, ओके, थर्ड वेंट्रिकल के एंटेरोवेंट्रल साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देयर आर ऑस्मोरिसेप्टर सेल्स, especially the SFO, subfornicial organ, subfornicial organ. These are the osmoreceptor cells, okay. And there is another osmoreceptor cell that is called very active organum vasculosum. Have you heard of this organum vasculosum? These are part of the circumventricular organs. Have you heard of circumventricular organs? These are outside the blood brain barrier, है ना। एक तो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, तो सारा चीज उधर जाएगा नहीं, है ना, बैरियर होता है, लेकिन ये पार्ट क्या होता है, these are outside the blood brain barrier, तो ब्लड का जो भी ऑस्मोलैरिटी है वो डायरेक्टली उसको कम्युनिकेट करेगा वो उस एरिया में, ओके। एंड दिस अकर्स इन द एरिया ऑफ द लैमिना टर्मिनालिस, लैमिना टर्मिनालिस एरिया होता है ब्रेन का यहाँ पे, ओके, लैमिना टर्मिनालिस ऑफ द ब्रेन यहीं पे होता है, ओके। सो ये क्या होगा, जैसे ऑस्मोलैरिटी चेंज होगा ये एक्टिवेट हो जाएगा ऑस्मोरिसेप्टर। एंड देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेल दैट इज कॉल्ड मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई, थर्ड यहाँ पे जो दिखा रखा है मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे डायरेक्टली कम्युनिकेट हो रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी अगर सपोज दैट अगर वाटर इंटेक कम है, ऑस्मोलैरिटी हैज इंक्रीज, इट विल बी एक्टिवेटेड, ओके। एंड दिस मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई, they are connected through neurons to the supraoptic and paraventricular nuclei, जहां पे क्या हो रहा है वो सिंथेसाइज हो रहा है ADH, isn't it? So what will happen, osmolarity जैसे इंक्रीज होगा it will be communicated, this information will be communicated to the supraoptic nuclei mainly and also to the paraventricular nuclei to release more of the ADH, isn't it? ADH ज्यादा निकालेगा because the requirement has increased, okay. So ADH will be released, okay. supraoptic nuclei ये आपको posterior pituitary में आ जाएंगे, ADH रिलीज करा देगा यहाँ से और ये ब्लड में आ जाएगा, वापस ये कैपिलरी में चला जाएगा ना ADH, please don't murmur. So ADH will be there in the blood circulation again. अब ADH जाके एक्ट करेगा ब्लड के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट्स पे काम करेगा एंड ऑल्सो टू द distal part of the distal connecting area, okay, DCT area में and collecting duct area में। अब यहाँ पे सेल्स होते हैं, as I have told you, प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करेंगे। अब प्रिंसिपल सेल्स का यहाँ पे जो लाइनिंग सेल्स होते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स में, एक तो ये सेल्स है ना, ये इस तरह से सेल्स हैं, लाइनिंग सेल्स होंगे ना, यहाँ पे लाइनिंग सेल्स होंगे, तो एक तो ल्यूमिनल साइड होता है और दूसरा क्या कहते हैं कैपिलरी साइड, डू यू नो दैट, है ना। ये जो लाइनिंग सेल्स होंगे एक ल्यूमेन के साइड में तो ल्यूमिनल साइड होता है, एक बेसोलेटरल साइड होता है, isn't it? तो बेसोलेटरल साइड में जो क्या होगा, इधर कैपिलरी नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो कैपिलरी जिसमें एडीएच बढ़ गया था ब्लड यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, ओके, एडीएच के रिसेप्टर्स मिलेंगे, V2 रिसेप्टर्स, V2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, V2 रिसेप्टर्स यहाँ पे होंगे, उस पर जाके बाइंड करेंगे। V2 रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद क्या होगा, जो साइक्लिक AMP पाथवे है वो एक्टिवेट होगा, G प्रोटीन एक्टिवेट होगा, GS, then it will activate the adenyl cyclase pathway. Adenyl cyclase, what it will do, it will convert ATP to cyclic AMP, isn't it? Cyclic AMP, जैसे cyclic AMP increase होगा protein kinase will be activated, protein kinase A, जैसे protein kinase activate होता है what happens, it will activate। अब इसके जो प्रिंसिपल सेल्स हैं उस सेल्स के अंदर में क्या होता है, वेसिकल्स होता है, काफी सारे पैकेट्स होते हैं, उस पैकेट्स के ऊपर में एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं, नॉर्मली अंदर में है सेल के अंदर में एक्वापोरिन 2 है स्पेशली। जैसे अगर एडीएच बाइंड करेगा, ये साइक्लिक एमपी पाथवे एक्टिवेट हो गया, वो एक्वापोरिन 2 जो चैनल्स है पैकेट्स है वो उसको रिक्रूट करेगा सरफेस पे, यहाँ पे लाइनिंग सेल्स पे, इस सेल्स समझ में आ रहा है, यहाँ पे
यहाँ पे रिक्रूट करेगा, एंड व्हाट इट विल डू, इट विल एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू दोज एक्वापोरिन। तो एक्वापोरिन का लेवल वहां पे इंक्रीज हो गया, समझ आ रहे? सो इन दिस वे इट इज एक्टिंग, सो वाटर एब्जॉर्प्शन इज हैपनिंग हियर, ठीक है ना? सो दिस इज द वे हाउ इट इज वर्किंग, सो द होम्योस्टैसिस विल बी अचीव्ड। एंड ऑल्सो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होता है, ओके, थर्स्ट वाटर ज्यादा ड्रिंक करेगा, ओके। देयर अनदर स्टिमुलस आई हैव टोल्ड यू, देयर आर वॉल्यूम चेंज अगर हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सो देयर आर वॉल्यूम सेंसर्स, यू नो, हार्ट में होते हैं ना वॉल्यूम सेंसर्स, स्पेशली इन द राइट एट्रियम। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो एएनपी रिलीज कराता है, राइट एट्रियम, यू नो, कार्डियक मायोसाइट्स आर देयर, वहां पे क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो क्या होगा, एएनपी रिलीज कराता है, वो डायरेसिस कराता है, ओके। अगर वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम है बॉडी में, ओके, सो व्हाट विल हैपन, एएनपी कम रिलीज होगा, ओके। एंड इन फैक्ट व्हाट विल हैपन, ये वॉल्यूम सेंसर ये एक्टिवेट करते हैं इस पाथवे को ऑल्सो डायरेक्टली। ये जो आपको ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं किसको एक्टिवेट करते हैं, इस पाथवे को, एडीएच को रिलीज कराते हैं अगर वॉल्यूम कम है। एंड देयर आर आल्सो प्रेशर सेंसर्स। रेड शर्ट खड़ा हो जाए बेटा, खड़े हो जाओ, हाँ पीछे, क्या हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे, बाहर आ जाओ, कम आउटसाइड, पढ़ने नहीं आते, कितने डिस्टर्ब करते हैं सबको। If you do not want to study, learn, why are you disturbing others? You are disturbing. Go and stand up. पीछे खड़े हो जाओ वॉल के साथ। So there are volume sensors, okay, in the atrium, right atrium, and there are pressure sensors as well. Blood pressure elevate हो रहा है या decrease हो रहा है, suppose blood pressure decrease हो गया, what will happen? There are baroreceptors, you all know, कहाँ पे होते हैं, कैरोटिड साइनस एरिया में, है ना, यहाँ पे कैरोटिड साइनस आयोटिक एरिया में होते हैं, वहां पे क्या होगा, वो एक्टिवेट होगा और वो क्या होगा, ये भी इसका इंफॉर्मेशन ये इसके थ्रू जाएगा यहाँ, ओके, इसको एक्टिवेट करेगा, समझ रहे हो? तो एडीएच विल रिलीज मोर, बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो नाइन्थ क्रेनियल नर्व एक्टिवेट होता है, यू नो, हेरिंग्स नर्व होते हैं, इफ यू रिमेंबर द बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, ओके। पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज होगा और सिंपैथेटिक कम हो जाएंगे, सिंपैथेटिक इंक्रीज होगा, पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन होगा, ओके। सो द ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, ओके। So there are three stimulus you can think of: change in the osmolality, volume change, or pressure change, okay. So it will activate this pathway. But there are vasoconstrictor effect, we have seen, V1A receptor के थ्रू होता है, V2 receptor यहाँ पे काम कर रहे हैं, V1A यहाँ पे कर रहे हैं, V1B we have seen where it is working, yes, on the anterior pituitary पे ACTH को रिलीज कर रहा है, वो V1B के थ्रू होता है, okay. So ADH acts on the kidney to conserve water through the V2 receptors, we all know, and this is a repetition here, two types of two types of receptors, ADH receptor V1 and V2, it is the same thing we have discussed. So this is the mechanism we have already discussed. क्या हुआ था, release of ADH रिलीज हुआ posterior pituitary से, ओके। सो ADH रिलीज होने के बाद इट विल बाइंड विद द रिस्पेक्टिव रिसेप्टर, V2 रिसेप्टर से बाइंड होगा ऑन द कलेक्टिंग डक्ट एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर एरिया। सो एक्टिवेशन ऑफ दिस पाथवे, cyclic AMP pathway, adenylyl cyclase, increase cyclic AMP, increase protein kinase A, and there will be phosphorylation, and that phosphorylation bit वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा जो अंदर में जो पैकेट्स है, ओके, उसको रिक्रूट करेगा ऑन द ल्यूमिनल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन सेल, ओके, बाय माइक्रोफिलामेंट्स उसको पुल करेंगे, isn't it? And incorporation of these aquaporin channels to the luminal surface
so there will increase absorption. V1A and V1B we have already discussed. जो V1 रिसेप्टर जो vasoconstriction हो रहा है उसका पाथवे अलग है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज थ्रू द 2C रिसेप्टर्स में आते हैं ये. ओके, इफ यू रिमेंबर ये फॉस्फोलाइपेज C के थ्रू काम कर रहे हैं, फॉस्फोलाइपेज पाथवे. ओके, ADH इंक्रीजेस द इंट्रासेलुलर कैल्शियम, फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम. IP3 डार्क पाथवे जो था इसके थ्रू ये काम कर रहा है. ओके, जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट है that is through this mechanism. There are other factors which are affecting the ADH secretion apart from those osmolality and okay, there are other factors like emotional stress में भी होता है at times, like acute emotional stress, like exams होता है, आप वाइवा देने जाते हो, उस टाइम में क्या होता है, there is frequent micturition. Okay, why is it so? Because there is decrease in ADH level. Okay, adrenaline decreases the ADH in acute emotional stress, लेकिन chronic emotional stress में increase होता है. Okay, so and alcohol it also causes diuresis. Okay, it reduces the ADH. It has been seen cortisol on thyroid, it releases the ADH. Coming on to the some important applied aspects. Diabetes insipidus. Have you heard of this? Diabetes insipidus. सबको पता है ना क्या होता है इसमें? कौन सा हार्मोन डेफिशिएंट हो जाती है? ADH हार्मोन, सबको पता है. सो बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. वन इज नेफ्रोजेनिक, मतलब किडनी में उसका प्राइमरी साइट है, डिफेक्ट है, नेफ्रोजेनिक, एंड देयर इज न्यूरोजेनिक, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल न्यूरोजेनिक को हम सेंट्रल डायबिटीज भी कहते हैं. एंड देयर इज अनदर सिंड्रोम विल डिस्कस, SIADH. डायबिटीज इंसिपिडस, इसका क्या कैरेक्टराइज होगा, क्या प्रॉब्लम, क्या पेशेंट प्रॉब्लम लेके आता है? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, सेम एज द डायबिटीज, बट व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? यू कैन थिंक ऑफ, इसका जो पॉलीयूरिया होगा वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा, डाइल्यूटेड होगा. ओके, और उसका कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसका ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगा डायबिटीज मेलाइटस वाले में, क्योंकि उसमें ग्लूकोज है. ओके, ये क्या है, डाइल्यूटेड निकल के आ रहा है. ओके, ADH का deficiency, polyuria and polydipsia. But there is another important feature, dehydration. Despite polydipsia, there is dehydration. Okay, क्योंकि polyuria predominant हो जाता है. Okay, so polyuria and polydipsia are also the features of diabetes mellitus. As I was telling you, what is the differentiating feature? Urine will be hypoosmolar in diabetes insipidus and hyperosmolar in diabetes mellitus. Okay, and urine is having no taste in diabetes insipidus. Okay, क्योंकि वाटर ज्यादा होता है उसमें. Insipidus means tasteless कहते हैं. Urine is hyperosmolar and urine will be having some taste because of the presence of glucose in urine. Okay, so nephrogenic diabetes insipidus कब कहेंगे? When the region, when the defect is there in the kidney itself. मतलब आपको ADH का सिक्रीशन नॉर्मल है. ओके, बट ADH का जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर में डिफेक्ट हो जाएगा ना. V2 रिसेप्टर जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, वो एक्ट नहीं करेगा, रीअब्जॉर्ब नहीं होगा. ओके, तो डेफिशिएंसी और एब्नॉर्मलिटी ऑफ द रिसेप्टर ऑफ द ADH. so what is the treatment here? ADH secretion में भी नॉर्मल और हाई, फीडबैक मैकेनिज्म से हाई भी कर सकते. Okay, it may be normal or high. So what will you do? You will treat the underlying cause. क्या defect क्या हो रहा है किडनी में, वो find out करना होगा, isn't it? And you have to correct that. And treatment देते हैं, thiazide diuretics देते हैं. Okay, thiazide diuretics, जिसको बोलते हैं hydrochlorothiazide. Okay, medium ceiling diuretics होता है. Diuretics तीन टाइप के होते हैं, हाई सीलिंग, मीडियम सीलिंग, लो सीलिंग. पोटेशियम एस्पायरिंग डायरेटिक्स ये मीडियम सीलिंग में आते हैं. थायराइड डायरेटिक्स ट्रीटमेंट देते हैं. सो न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, वेयर इज द प्रॉब्लम हियर? इट इज देयर इन द CNS, ब्रेन, हाइपोथैलेमिक एरिया में होगा. ओके, देयर इज, वहां से क्या होगा, वहां से रिलीज ही नहीं हो रहा. ओके, देयर इज नो और वेरी लिटिल प्रोडक्शन ऑफ ADH. ओके, एंड
So disease may be there in the whole the channel, जो भी ब्रेन में जो ये स्ट्रक्चर्स है related with the ADH secretion, whether it is in the hypothalamus or the tracts, hypothalamo-pituitary tracts or the posterior pituitary, isn't it? कहीं पे भी हो सकता है. So what is the treatment here? Because there is deficiency or little ADH secretion, you have to give out from outside ADH, maybe synthetic ADH. Okay, so synthetic ADH is called desmopressin. एक इंजेक्शन आते हैं इससे desmopressin के. Okay, synthetic ADH, desmopressin is given. And also there are some drugs also which is having some role, that is called oral hypoglycemic agent. ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं ना शुगर वाले पेशेंट, यहाँ पे भी काम आते हो. क्लोरप्रोपामाइड, ओके, क्लोफाइब्रेट एंड एंटीसाइकोटिक ड्रग दैट इज कॉल्ड कार्बामाजिपिन. ओके, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए देते हैं क्लोफाइब्रेट. ओके, सो दीज आर द सम ड्रग्स विच में एक्टिवेट सम, ये जो पाथवे है उसको कुछ एक्टिवेट करते हैं एडीएच सिक्रेशन. देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज यूजुअली आस्क्ड, SIADH. ओके, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SIADH? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन. सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन. इनएप्रोप्रिएट मीन्स नॉट द डेफिशिएंसी, यू हैव टू, स्लाइट मिसनोमर टाइप का है. इनएप्रोप्रिएट आपको लगेगा कि कम हो गया लगता है, बट इट इज नॉट डिक्रीज, इट इज एक्सेसिव ADH सिक्रेशन. ओके, सिंड्रोम ऑफ एक्सेसिव ADH सिक्रेशन, इसमें ADH सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है. ओके, डिस्पाइट ADH, डिस्पाइट डाइल्यूटेड ब्लड, हाइपो डाइल्यूटेड ब्लड है, डाइल्यूटेड ब्लड होगा तो क्या होना चाहिए? ADH सिक्रेशन इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है. ओके, डिस्पाइट डाइल्यूटेड ब्लड, हाइपोऑस्मोलर ब्लड, स्टिल देयर इज इंक्रीज इन एक्सेस ADH सिक्रेशन. ओके, ये कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा. ओके, सो दैट इज, इस स्टेट में क्या होगा? अगर ऑलरेडी हाइपोऑस्मोलर है, अगेन क्या होता है, आपको रीअब्जॉर्ब फिर से हो रहा है, ADH सिक्रेशन एक्सेस हो रहा है. व्हाट विल हैपन? देयर विल बी डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया, डाइल्यूशन हो जाएगा ना पूरे बॉडी में, इजंट इट? ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा, इजंट इट? सो देयर विल बी हाइपोटोनिक कंडीशन एंड हाइपोनाइट्रीमिक कंडीशन ब्लड में, एंड देयर विल डिक्रीज्ड यूरिनरी डाइल्यूशन. डाइल्यूशन कम हो रहा है क्योंकि ADH सिक्रेशन इंक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो रहा है. हाइपोऑस्मोलर कंडीशन है ब्लड में, फिर भी डाइल्यूटेड यूरिन पास कर रहा है. समझ में? डिक्रीज यूरिनरी डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास कर रहा है. ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो लीड्स टू वाटर इंटॉक्सिकेशन. वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा ना, एक्सेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ओवर हाइड्रेशन. दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशनल सिंड्रोम भी कहते हैं, डाइल्यूशनल सिंड्रोम. काउजेस क्या होगा? व्हाट आर द काउजेस? देयर में भी सम इंडोजिनस काउजेस, बॉडी के अंदर में है. देयर में सम एक्सोजिनस काउजेस. इंडोजिनस काउजेस लाइक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में क्या हो रहा है, कोई आपको ट्यूमर हो जाए. ओके, सो इन दैट केस, एंड देयर इज ऑल्सो कंडीशन विच इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ADH. ADH तो नॉर्मली वहां से रिलीज हो रहा है, बट इट हैज बीन सीन दैट स्पेशली इन सम कार्सिनोमस कंडीशन, मेटास्टैटिक कंडीशन, जो कैंसर कंडीशन होता है, उस केस में क्या होता है, वो कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करने लगते हैं ADH. दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ADH, स्पेशली इन लंग कैंसर. लंग कैंसर में भी एक टाइप होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर. ओके, उसमें ADH सिक्रेशन प्रोपोर्शनली इंक्रीज होने लगता है. सो इट इज नॉट विद इन इट, ये क्या हो रहा है, दूसरे सेल से आ रहा है. सो एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ADH स्पेशली इन लंग कैंसर एंड हेड एंड नेक कैंसर ऑल्सो. ओके, एंड ऑल्सो ड्यू टू सम ड्रग्स. अभी हमने ड्रग्स दिया ना वहां पे, है ना, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज दिया था ना वहां पे, दैट इज क्लोफोपामाइड, कार्बामाजेपिन, ये आपको न्यूरोजेनिक के लिए दिया था. ओके, तो वहां पे क्या होता है, ये पोटेंशिएट करते हैं ADH इफेक्ट को, तो ADH ज्यादा इंक्रीज करने लगते हैं. देयर इज सम एक्सोजिनस काउज, लाइक आपने बाहर से ADH आपने डेस्मोप्रेसिन ज्यादा दे दिया आपने. ओके, तो एक्सोजिनस काउज हो सकता है, इट में लीड टू SIADH. अदर काउजेज में भी हेड इंजुरी. हेड इंजुरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काउज, एंड ऑल्सो सम इन्फेक्शन.
इस केस में हेड इंजरी के पेशेंट में SIADH को रूल आउट करना पड़ता है. ओके, एंड some infection like meningitis, Guillain-Barré syndrome, and there is some other factors which is called idiopathic. Idiopathic, have you heard of this word, idiopathic? Yes, whose causes are still not known. That is called idiopathic causes. So what will the feature here? Osmolality increase होगा या decrease होगा? Decrease होगा और further decrease होगा, isn't it? Dilution हो रहा है, excess ADH है, तो obviously water reabsorption ज़्यादा, decrease effective plasma osmolality, even less than 275 milliosmol, and अंदर में जो सोडियम पोटेशियम वो भी कम हो जाएंगे, डाइल्यूशनल हो जाएंगे. डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया ड्यू टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर. लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाता है. इफ यू रिमेंबर, एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन जो कहां से आ रहा है, एड्रेनल से आ रहा है, कॉर्टेक्स से, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है. जब कम होगा एल्डोस्टेरोन का वर्क क्या होता है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, सोडियम पास ज्यादा होगा. हाइपर नाइट्रीयूरिया, यूरिन में ज्यादा सोडियम पास होगा. ओके, हाइपर नाइट्रीयूरिया. So these are the important features. Decreased effective plasma osmolality, hyponatremia. अगर आपको सिर्फ याद रखोगे excess ADH production, उससे आप फीचर्स लिख सकते, मैक्सिमम फीचर्स. ओके, hyponatremia, hypernatriuria, and increase, obviously urine will be, सोडियम ज्यादा पास हो रहा है, यूरिन का ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज urinary osmolality, highly concentrated urine, but this is a catch here. क्लिनिकली वो आपको पता नहीं चलेगा, यू वॉल्यूमिक कंडीशन होगा, क्लिनिकली अप्रिशिएट मुश्किल हो जाता है. ओके, क्लिनिकली यू वॉल्यूमिया, नो हिस्ट्री ऑफ रिसेंट, ये आपको रूल आउट करना है डायग्नोस करने से पहले. नो हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ डायरेटिक्स. ओके, एंड नॉर्मल थायराइड एंड एड्रेनल फैक्टर. देयर आर अदर फीचर्स एज वेल. सीरम में यूरिक एसिड कम हो जाते हैं, ब्लड यूरिया कम हो जाता है, और यूरिया एंड सोडियम एक्सक्रीशन यूरिन में बढ़ जाते हैं. मैनेजमेंट क्या करेंगे इसमें? यू हैव टू ट्रीट द अंडरलाइंग काउज ऑब्वियसली. सो करेक्शन ऑफ हाइपोनाइट्रीमिया, ओके, एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है ना, सो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना होगा, एंड डायट्री इंटेक ऑफ सॉल्ट एंड प्रोटीन इंटेक. ओके, डेमेक्लोसाइक्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना. डेमेक्लोसाइक्लिन ड्रग देते हैं उसमें, वो क्या करता है एक्चुअली, इट डैमेजेस द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन से मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है एडीएच के इन्फ्लुएंस में, तो उसको डैमेज करते हैं रिसेप्टर्स को वहां पे. समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, वो रीअब्सॉर्ब कम होगा, तो वॉल्यूम जो ओवरलोड हो रहा था वो कम हो जाएंगे. सो इट डैमेजेस द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. इसके जो आपके जो रिसेप्टर है वो अनरेस्पॉन्सिव होने लगते हैं. Then another question which is asked, which is vasopressin escape phenomena. ये तो SIADH सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट आपको. वैसोप्रेसिन एस्केप, वैसोप्रेसिन नाम से क्या पता चल रहा है, वैसोप्रेसिन का जो फीचर्स है वो एस्केप हो रहा है. ओके, दैट इज द किडनी एस्केप्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ वैसोप्रेसिन. ओके, वैसोप्रेसिन का क्या काम है, तो आप रीअब्सॉर्ब करना, तो वो क्या करता है, वो रीअब्सॉर्ब नहीं होने दे रहा डिस्पाइट हाई लेवल ऑफ वैसोप्रेसिन. ओके, स्पेशली इट हैपेंस in cancerous condition like lung cancer, other malignant condition. वो ADH secretion तो increase हो गया, लेकिन क्या हो गया, despite that vasopressin is not acting. Okay, vasopressin is not acting. क्यों हो रहा है? Down regulation of the receptors, receptor down regulation. समझ आ रहा है? So urine output increases despite high plasma level of ADH. ADH level high है, फिर ये वर्क नहीं कर रहा, तो urine output ज्यादा होगा. वैसोप्रेसिन एस्केप फेनोमेना. वैसोप्रेसिन का जो इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा. ओके, ड्यू टू द डाउन रेगुलेशन ऑफ द एक्वापोरिन प्रोडक्शन एंड ऑफ द रिसेप्टर्स. ओके, एंड द वाटर रिटर्निंग एक्शन ऑफ एडीएच इज काउंटरएक्टेड बाय दिस वैसोप्रेसिन एस्केप फेनोमेना. ओके, एंड तो इस तरह के पेशेंट्स में क्या होता है, कुछ दिन जिंदा तो रहते हैं ना, तो उसको लिमिट करने के लिए डिग्री ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, ओके, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया जो हो जाता है, ओके, एक्सेस एडीएच प्रोडक्शन के चलते, उसको लिमिट करने के लिए फेनोमेना, वैसोप्रेसिन एस्केप फेनोमेना. कमिंग ऑन टू द ऑक्सीटोसिन.
इट इज ऑल्सो ऑलिगोपेप्टाइड, ये भी आपको मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स में होंगे प्रोडक्शन वहां पे, स्पेशली इन द, इसमें पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर प्रिडोमिनेट करता है, वहां पे क्या था सुप्रा ऑप्टिक कर रहा है, करते दोनों हैं बट प्रिडोमिनेटली ये पैरावेंट्रिकुलर में हो रहा है ऑक्सीटोसिन। ओके, एंड ऑब्वियसली अभी आपको बताया था, इट इज जो कैरियर प्रोटीन कौन से है इसमें, न्यूरोफाइसिन 1 है, एडीएच में न्यूरोफाइसिन 2 थे। हाउ इट इज रेगुलेटेड, obviously there are two important physiological stimulus you must be knowing. There are milk ejection reflex and there is parturition reflex. ये दो पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, you all know. Okay, milk ejection reflex या milk let down reflex भी कहते हैं. Okay, बच्चा जब क्या होता है शकल करता है तो क्या होता है, मिल्क लेट डाउन होता है. बैठ जाओ प्लीज, आप प्लीज डोंट डू दैट. Okay, so what are the stimulus? Suckling of the baby during breastfeeding. Okay, it will activate this reflex. Okay, milk let down reflex. And there is, at the time of parturition, there is cervical dilatation and uterine contraction, isn't it? And also during sexual act, genital stimulation, okay, उस टाइम में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज इंक्रीज होता है. Okay, there are certain factors which decreases the oxytocin release, like in emotional stress, sympathetic stimulation and alcohol. Okay, ये inhibit करता है oxytocin secretion. What is the mechanism of action here? Oxytocin, if you remember the previous lecture, it comes on the group 2C hormone. Okay, cyclic AMP जो pathway second messenger से जो होते हैं, है ना, if you remember 1, 2A, 2B इस तरह से था ना, 2C हार्मोन, तो ये क्या है 2C हार्मोन में आते हैं. ओके, इसमें ये फॉस्फोलाइपेज IP3 डार्क पाथवे से करते हैं, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है. ओके, फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो बाय द G प्रोटीन, ऑब्वियसली बाय एक्टिवेटिंग द फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम, एंड दैट एक्टिवेट्स द inositol triphosphate DAC pathway. Okay, and it increases the intracellular calcium, especially the IP3. Okay, और प्रोटीन काइनेज C DAC को एक्टिवेट करते हैं. सो ये वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. फंक्शंस क्या होंगे, मिल्क इजेक्शन एंड पार्चुरेशन रिफ्लेक्स. दीज आर द न्यूरो ह्यूमरल रिफ्लेक्सेस. अब ये आप समझ लोगे, you can understand this milk ejection reflex, how it is being undertaken. If there is suckling of the baby, बच्चा शकल करता तो क्या होगा, tactile stimulation होगा, tactile receptors are there. There is the mammary area, isn't it, nipple area. There are sensory nerve fibers, afferent fibers जाएंगे, sensory fibers, and it will ascending fibers जाएंगे, है ना, ascending pathway से touch receptors, touch pathway, है ना, ये जाएंगे, ascending fiber जा रही है, बीच में क्या होता है, थैलमस इज द, क्या होता है वहां पे जाके क्या करता है वो, थैलमस इज द, यस टेल मी, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो थैलमस यहाँ पे जाकर इसको पास होके जाता है वो पोस्ट सेंट्रल गायरस, इजंट इट. सो टू द थैलमस, लेकिन यहाँ से कोलैटरल निकलते हैं एक फाइबर. ओके, एंड इट एक्टिवेट्स द this paraventricular nuclei and supraoptic nuclei. इसको एक्टिवेट करेगा थ्रू द कोलैटरल, एंड हियर paraventricular nuclei एक्टिवेट होगा. व्हाट इट विल डू, it will increase the production of oxytocin. Oxytocin will come here in the blood, and through the blood it will reach the milk laden cells. Milk laden alveoli होते हैं mammary gland में, which are surrounded by the myoepithelial cells. ये मायोएपिथेलियल सेल्स कवर कर रहा हो तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, मायोएपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है. कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, मिल्क लेट डाउन होगा, isn't it, obviously. And also by the sound of the child cry also, in fact the level of oxytocin increases, oxytocin let down बढ़ जाता है, because of the, it activates the higher center directly. Okay, so if you are able to understand this simple diagram, so milk ejection reflex is another very important
question which is asked. Then the parturition reflex, it helps in the induction of labor. You must have heard, जब आपको लेबर का टाइम होता है, डिलीवरी का टाइम होता है, उस टाइम में ऑक्सीटोसिन को इन्फेक्शन दिए जाते हैं, या जिसको टर्म हो गया, पूरा हो गया, लेकिन स्टिल उसको लेबर पेन नहीं आया, तो लेबर पेन स्टार्ट करने के लिए भी दिया जाता है, isn't it, to induce the labor. Okay, so oxytocin causes contraction of the uterine muscles, more than 100-fold increase in the oxytocin receptors in the presence of, okay, during the parturition. So how does it work? It increases the prostaglandin formation in the endometrium. Okay, please no murmuring, don't murmur. So uterine contraction is increasing, dilatation of the cervix and distension of the vagina, and what it will do, it will cervix और vagina से क्या होगा, stimulate the paraventricular through the afferent fibers. Okay, afferent fibers, sensory fibers activate होंगे और ये ऑक्सीटोसिन का रिलीज कराएगा, okay, through the efferent fibers, और ये feedback mechanism से control होता है. Okay, so in this way the parturition reflex is also working. What are the other functions of oxytocin? It also facilitates the degeneration of corpus luteum, okay, and sperm को propel करने में help करता है, okay, towards the urethra as well. And in females also, fallopian tube में जो वहाँ पे fertilization हो रहा है, तो उसको वहाँ तक reach करने में help कर रहा है. Also recently it has been seen that oxytocin, this very latest research which is undergoing, that oxytocin is associated with anti-obesity, okay, and also diabetes. Latest research चल रही है, okay, oxytocin with obesity as anti-obesity, oxytocin as anti-obesity and anti-diabetes drug. Okay, so these are the, so there are certain preparations of oxytocin which is clinically used, उसको हम oxytocic drugs भी कहते हैं, okay, like for induction of labor, facilitate the progress of labor, okay, and also जब डिलीवरी हो जाता है उसके बाद भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, क्यों देते हैं? पीपीएच को रिड्यूस करने के लिए. पोस्टपार्टम हेमरेज, a very important cause of mortality in pregnant lady, okay, during the delivery, उसको रिड्यूस करने के लिए. कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लीडिंग को कम करता है, okay, post after the delivery, so it contracts the bleeding vessels and it prevents the bleeding, okay.